only when something beautiful happens within themselves. They think they're going to cause it to themselves by some means. But people have been happy before the Wi-Fi came, people have been happy before the automobile came, people have been happy before all the luxuries we are enjoying today appeared. So what I'm saying is, well-being, if you're in pursuit of well-being, essentially, it is about what happens within the human being. What happens within the human being in the name of so many things, I don't want to name all the things. In the name of so many things, what we call as family, society, and another world which we call as corporate world, all these things we created, these are all different names or different mechanisms that we believe will bring well-being to us. Somebody built a family, somebody built a corporation, both in pursuit of well-being, isn't it? I must tell you this. The first time I was at Davos many years ago, they were almost resentful. Why… what is a mystic doing in an economic summit? A particular CEO who was in charge of a top computer manufacturing company, 3 months later they got sold out to the Chinese. We can guess who they were. So he was very resentful. What are you doing here? Then I told him, see, what's your business? He said, I do computers. So see, whether you manufacture a computer or a safety pin or in between anything, fundamentally, this is about human well-being. The basic business is human well-being. You may do it through your computer, somebody will produce safety pin, somebody will produce a cloth, somebody will produce something else. It doesn't matter what you're doing, the fundamental business is human well-being, and that's my business too. And that's why I'm here. The fundamental business of someone is basically human well-being, and that is the reason that the leaders are existing there. So what do you think? What have we learned from this particular discussion, that what is a leader and what is leadership then? Your comments, please. What do you think? Because according to this clip, the fundamental reason is basically the well-being, and we are all there to create the well-being from a pin to a computer and all in between. We are there to create the well-being, okay? So happiness, satisfaction, well-being, there are so many phenomena which are discussed by different people in our concerns, and we are trying to comprehend कि हम उसको अपने context में किस तरीके से translate वो कर सकते हैं. If there is any question or comment from your side, I welcome that. Otherwise, then we'll move to the chapter discussion. Okay, Jahazib has just commented that well-being is obvious. Jerina, you want to add something? Yes, sir. In short, के leader वो person है जो confident है, जिसको मतलब कि अपने ऊपर यकीन है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मैंने ये in short मैंने ये leader का ये अभी तक जो मैंने सारा concepts पढ़े हैं वो मैंने इसका निचोड़ के निकाला. जी बिल्कुल ठीक है. उसको कॉन्फिडेंट यकीन होना चाहिए, उसको अपने क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए उसके पास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और कोई पॉइंट ऑफ व्यू जी? Anything else if anybody is trying to add? जी सर, वो शेर याद आ रहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियां. जी. So you are right. Basically contribution है, participation है सबकी तरफ से, और हर कोई कोशिश जो है वो कर रहा है कि वो अपने ताई चीज़ों को बेहतर से बेहतर डेवलप कर सके. सो डियर, हम मूव करते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ रिलेटेड टू the lecture topic of the book. हमारे पास जो concept अब start हो रहा है, that is change existing expectations. अभी तक जो हमने cover किया था वहां से अब एक step हम आगे लेकर चल रहे हैं बात को, और यहाँ पर हम देख रहे हैं change existing expectations. और उसमें हमने लास्ट टाइम काफी इसके ऊपर बहस की थी कि एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज के अंदर क्या ताल्लुक है. बेसिकली इकदाम एक ही है, नियत का फर्क है बेसिकली. और बिल्ड ट्रस्ट एंड एनहांस सपोर्ट, जब आप अपने इस एक्सपेक्टेशंस के सिनेरियो को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एनहांस द सपोर्ट ऑफ द अदर पीपल, बिकॉज कपल ऑफ टाइम्स विदाउट द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ द अदर पीपल आप सिनर्जी क्रिएट नहीं कर पाओगे इन व्हाटएवर यू आर डूइंग. द थर्ड थिंग व्हिच योर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट इज शेयर एंड dialogue with the stakeholders.
ठीक है, ताकि आप उनको क्लियर कर सको, वो आपको क्लियर कर सकें। ये टू वे प्रोसेस होगा जिससे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी कमिटमेंट्स, हमारे एंगेजमेंट्स वो क्लियर हो पाएंगी। एंड ऑब्वियसली म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कंसर्न योर ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। उसके बाद आपका ऑथर बात करता है कि व्हाट यू गेन फ्रॉम स्टेक होल्डर डायलॉग, और उसके बारे में वो कह रहा है कि यू कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन ईच अदर। ओके, आपकी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ क्या है, उसको हमें कुछ कैलकुलेट करना है। उसके तरीके कर अभी हम एक्सरसाइजेस में देखेंगे। डिस्कवर शेयर्ड इंटरेस्ट, एक दूसरे के साथ जो हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट है उनको आप ढूंढें, क्योंकि जब तक वो शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं होंगे तो दूसरा शख्स पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट। द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू वेज ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, वो हमें डेवलप करने पड़ेंगे। आए दिन हमें अपने तरीकेकार चेंज करना होगा कि जिससे कि हम ट्रस्ट को और अंडरस्टैंडिंग को बेहतर तौर डेवलप कर सके। वो तभी मुमकिन होगा जब हमारा शेयर्ड विजन होगा, और वो तभी मुमकिन होगा जब हम 360 डिग्री फीडबैक के ऊपर यकीन रखेंगे। जब हमें अपने से ऊपर वाले, अपने से नीचे वाले, अपने से दाएं वाले, अपने से बाएं वाले सब लोगों के फीडबैक्स का पता हो कि व्हाट दे थिंक एंड बिलीव अबाउट अस एंड व्हाट वी थिंक एंड बिलीव अबाउट देम। अब आपका ऑथर डिस्कशन शुरू करता है, बी होल, एक्ट विद इंटीग्रिटी, चार्ट योर कोर्स ऑफ एक्शन। अब इस कोर्स ऑफ एक्शन को चार्ट करने के लिए यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर बिग सरप्राइजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बिकॉज कपल ऑफ टाइम्स इन अवर लाइफ हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया होता, हमने सिर्फ चीजों को इंपोज किया होता है दूसरों के ऊपर। और अक्सर औकात जब हम इन्वेस्टिगेट करने बैठेंगे तो विल कम टू नो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हमारे साथ परहैप्स बहुत डिफरेंट हैं। परहैप्स हम बहुत कुछ वो करते रहे हैं जो हम समझते थे ठीक है, लेकिन शायद वो बहुत ठीक नहीं है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट अक्सर डिस्कस की जाती है कि समटाइम्स देयर इज अ सिन इन सिंसेरिटी। सिंसेरिटी के पहले 3 जो स्पेलिंग्स आ गए, दैट इज SIN। तो इट इज सेड कि देयर इज अ सिन इन सिंसेरिटी, कि हम अपनी पूरी सिंसेरिटी के साथ वहां पर मौजूद हैं, लेकिन शायद हमारा होना ही वहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक था। सो रिमेंबर वन थिंग कि आपको जब आपने ये डायलॉग्स के ऊपर आना है, इन एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करना है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बिग सरप्राइजेस। हो सकता है कि आप सरप्राइज ना हो, वो बिकॉज हो सकता है कि आप पहले से बड़े एजाइल और विजिलेंट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने सारी जिंदगी सिर्फ बात मनवानी सीखी है, बात माननी नहीं सीखी है। तो ये चीज आपको बड़ा सरप्राइज कर देगी कि जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ हैं वो शायद डिफरेंट हैं। यहां पर एक और चीज भी याद रखिएगा, हम अक्सर औकात अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं ये कहकर कि हम अपनी सारी जिंदगी डिवोट कर रहे हैं दूसरों के लिए, दूसरों की खातिर, लेकिन शायद हमने वहां पर अपने आप की नफी कर रखी है। हम शायद वहां पर अपने आप की अपनी प्रेजेंस को वो इंश्योर नहीं कर सक रहे हैं। एक छोटी सी लाइफ एग्जांपल से मैं इस बात को डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्दर स्टडीज, तो मेरा मुसलसल ये ख्याल था कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपनी फैमिली को बेहतर सपोर्ट कर सकूं, मैं कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी बेहतर कर सकूं, मैं अपने प्रोफेशन को बेहतर तौर पे एस्टैब्लिश कर सकूं। तो मैं दूसरों के लिए ये सेक्रीफाइस कर रहा हूं, ये कंप्रोमाइज कर रहा हूं, ये एडजस्टमेंट कर रहा हूं कि आई एम गोइंग फॉर फर्दर स्टडीज। लेकिन एक वाकया जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो कुछ इस तरह से है कि आई फेल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम कि माय सन इज नॉट इज हैप्पी विद मी। ठीक है, मैंने कपल ऑफ टाइम इसको इंक्वायर करने की कोशिश की कि बेटा क्या बात है, आप कुछ मुझे खुश नहीं लग रहे हो, बट ही वाज नॉट डिस्कसिंग द थिंग्स विद मी। इवेंचुअली आई आस्क्ड माय वाइफ कि जी इसको आप जरा पता करें कि क्या मसला है इसको, एंड शी टोल्ड मी कि वो ये कह रहा है कि कई दिन हो गए हैं मैंने उसके साथ नाश्ता नहीं किया। ओके, जब आई केम टू नो दिस थिंग तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ये सारा काम इसलिए कर रहा था कि उसी के लिए बेहतर मुस्तकबिल क्राफ्ट कर सकूं, लेकिन उस बेहतर मुस्तकबिल के क्राफ्टिंग के अंदर उसको बेहतर एनवायरनमेंट देने की खातिर मैं अपने आप की नफी वहां पर कर रहा था, अपने आप को वहां से दूर कर रहा था, अपने आप को वहां से एंगेज नहीं कर रहा था। So what I did कि मैंने immediately I took the time off from my life and my professional context and from my academic context, or took my family and went for some holidays. Okay, वहां पे जाके उनके साथ एक वक्त अच्छा गुजारा, and I try to recover to the context कि शायद मेरा होना वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था, बजाय इसके कि मैं उनको एनवायरनमेंट का दे रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं उनको पैसे कितने दे रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं वहां पर उनके लिए अदरवाइज का कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहा हूँ। तो हम बाज़ औक़ात अपने होने की नफी वो कर बैठते हैं, which is not a good thing। हमें ये सोचना पड़ेगा कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसको हमारी किस जरूरत, हमारी प्रेजेंस की, हमारी किस पर्सपेक्टिव की जरूरत वो थी। So your expectations may be in clash with other expectations। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बिग सरप्राइज का सोर्स है।
कि बाज़ औक़ात आपकी तवक्कुआत दूसरों की तवक्कुआत के साथ क्लैश में आ जाती हैं। बाज़ औक़ात आप अपने आप को जस्टिफाई करते करते उनके साथ फेयरनेस नहीं कर पाते हो। तो ये एक बड़ा मामला आपको सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा जब जो आप ये बात करोगे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर पीपल फॉर यू। लाइकवाइज व्हाट पॉइंट्स यू शुड अवॉइड, आपको कहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, कहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्कशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, कहां पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आपके आ सकते हैं। तो आपको इस बारे में भी केयरफुल रहना है कि कहां पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करोगे और उन पॉइंट ऑफ व्यूज को बयान ना करना ही आपके हक में बेहतर है। इस सारे मामले को अब कैसे किया जाएगा? यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू हैव टू बी क्लियर इन योर थॉट प्रोसेस, क्लियर इन योर पर्सपेक्टिव। अब एक्सरसाइज नंबर 11 पर पहुंचते हैं, राइट, जिसके लिए हमने ये सारी ग्राउंड प्रिपेयर की आज के इस दिन में। 1 इकाई से लेकर बकिया सारी जो बातें हमने डिस्कस की वाज बेसिकली द ग्राउंड प्रिपरेशन फॉर दिस 11th एक्सरसाइज। और वो ये है कि रिफाइन योर अप्रोच। इस एक्सरसाइज में आपका ऑथर आपको एडवाइस करता है कि हियर आर सम सजेशंस फॉर हाउ टू गेट एट द मेन कंटेंट ऑफ द एक्सचेंज। उस मकसद के लिए चूज लैंग्वेज दैट फील्स कंफर्टेबल टू यू। अब इसमें करना हमने क्या है? वो कहता है कि डिस्कस योर परसेप्शन ऑफ व्हाट यू बिलीव दे नीड फ्रॉम यू। आपका क्या ख्याल है, जो आपका ख्याल है कि उनको जरूरत है आपसे, और उसको आप कैसे एलैबोरेट करोगे? यूजिंग आई स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट यू एक्सपेक्ट मी टू। अब यहां पर आप होम, प्रोफेशन, सेल्फ, कम्युनिटी, इनको फिलअप करोगे, उनमें उन कैरेक्टर्स को फिलअप करोगे जिनके आपने नाम अपनी पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर वो मेंशन किए थे। तो आई थिंक दैट यू एक्सपेक्ट मी टू, नाउ दैट इज योर थिंकिंग। लेकिन आपने, आई डोंट नो कि आपने पहले कभी इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं किया, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, कॉन्शियस ग्राउंड्स के ऊपर, कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अपने तय तो हम सब लोग जस्टिफाइड हैं, लेकिन क्या हमने कभी दूसरे के ख्यालात को भी परख कर देखा? एंड आस्क वेदर योर परसेप्शन इज करेक्ट और नॉट। इफ इट्स नॉट, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। सेकंड पॉइंट, ask for details and examples of what they need from you and want for you। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस मैं आपको बता रहा हूं। Ask for details and examples of what they need from you and want for you। ठीक है, हमें ये चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अपने 4 वे विन्स के साथ, अपने 4 डोमेन्स के साथ, द होम, द कम्युनिटी, द प्रोफेशन एंड योर ओन सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है इस 11th एक्सरसाइज के अंदर कि फ्लिप इट अराउंड एंड डिस्कस योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम, देन आस्क फॉर रिएक्शंस एंड क्वेश्चंस। अब आप उनकी बात को सुनो और फिर देखो कि आपकी एक्सपेक्टेशन उनके साथ क्या थी। ये अगेन इसमें 2 बातें अहम है, नीड फ्रॉम यू एंड वांट फॉर यू। इसको आप फ्लिप भी कर लोगे कि नीड फ्रॉम देम एंड वांट फॉर देम। इस मकसद के लिए एक चीज का हमें बड़ा अहम ख्याल रखना है, और वो ये है कि ट्राई नॉट टू लेट इमोशंस गेट इन द वे ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, बिकॉज जज्बात के उस खेल में आकर आप उसकी जो एक्सरसाइज की और जो सारा जो स्पिरिट है हमारा, जो एक्सप्लोर करना हम चाहते हैं, वो खराब कर बैठोगे। बिकॉज जज्बात से ये मामला हल नहीं होते हैं। आपको रैशनैलिटी, आपको कॉन्शियस लेवल अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ चीजों को लेकर चलना है। सिर्फ क्योंकि जज्बात में सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस नहीं है, इमोशंस में बहुत सारी नेगेटिविटीज भी हैं। आपको हो सकता है किसी बात पर गुस्सा आ जाए कि अगर कोई शख्स आपके साथ कोई एक्सपेक्टेशन कुछ और लगाए हुए है और आप सारी जिंदगी यही समझते रहे थे कि शायद आप उसके साथ जो है वो जस्टिफाइड हो, लेकिन उसका ये ख्याल है कि आप उसके साथ जस्टिफाइड कभी भी नहीं रहे, तो ये स्टेटमेंट सुनने का हौसला वो आपके अंदर होना चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि जज्बात अगर पॉजिटिव हो सकते हैं तो वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको इन मामलात के अंदर कॉन्शियस, रैशनल, लॉजिकल वो होने की जरूरत वो होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है विच यू हैव टू एड्रेस। एक्चुअली आपका ऑथर कहता है कि हाउ टू सेट अप ईच डायलॉग इंक्लूडिंग द टाइमिंग, सेटिंग एंड मीडियम। इसके ऊपर बहुत सी साइकोलॉजिकल स्टडीज हमारे पास मौजूद हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ द डे, कौन सा डे ऑफ द वीक, किस तरह की वर्क सेटिंग्स आपकी होनी चाहिए, किस तरह की बात को डिस्कस करने के लिए, राइट। बिकॉज इसके अंदर बाज़ औक़ात आपका जो टाइमिंग ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन है, हो सकता है कि वो गलत हो। The other person is already very aggressive due to something, और आप उसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे बारे में क्या है, तो दैट टाइमिंग might not be the right timing। ओके, सो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि इंसान के जो मूड्स हैं, इंसान के जो फ्लक्चुएशंस हैं इन द टेम्परामेंट, उनके मुताबिक आपको ये देखना होगा कि आप जब डायलॉग कर रहे हो तो वो किस वक्त कर रहे हो, किस दिन कर रहे हो, किन हालात और वाकयात में कर रहे हो।
और किस मीडियम के जरिए कर रहे हो? आर यू सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज और यू आर पुटिंग अ पोस्ट ऑन द फेसबुक और यू आर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल, कि आपको फेस टू फेस जाकर वहां पर बात करनी चाहिए? इसमें जो मीडियम है, चैनल रिचनेस है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, बिकॉज मैसेज की सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसी के मुताबिक आपको अपना मीडियम भी सिलेक्ट, अपना चैनल भी सिलेक्ट वो करना चाहिए। Second important thing is कि what information is to be used from the previous exercises. अब इस 11th एक्सरसाइज को करने के लिए आपने जो पीछे जितना डाटा सबमिट किया और डाटा डेवलप किया, आपको ये भी देखना है कि उसमें से क्या चीज आपको दोबारा से पिक करनी है, दोबारा से रीफ्रेज करनी है, दोबारा से सोचनी है। What you will do to verify performance expectations of each stakeholder, और हर स्टेक होल्डर के साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके पैरामीटर डिफरेंट होंगे। परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी डिफरेंट है, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ होम डिफरेंट है, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन डिफरेंट है, एंड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ योर ओन सेल्फ वो डिफरेंट है। और कभी कभार कोशिश कीजिएगा कि कुछ लम्हे, कुछ बातें आप अपने साथ भी कर पाए। द प्योर यू, ओके, तो आपको यू विल बी सरप्राइज समटाइम्स कि व्हाट यू वुड बी टॉकिंग अबाउट टू योरसेल्फ। अब इस सारी एक्सरसाइज के दौरान आपको जो चीज याद रखनी है, रिमेंबर दैट ईच रिलेशनशिप इज डिफरेंट। हम अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को होम में अप्लाई नहीं कर सकते, हम अपनी होमली वर्किंग को, होमली अंडरस्टैंडिंग्स को प्रोफेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, हम अपने प्रोफेशन और होम के सेटअप को कम्युनिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, और जो कुछ हम कम्युनिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो सारा कुछ हो सकता है कि हमारी जात पर अप्लाई ना हो सकता हो। तो हर रिलेशनशिप के तकाजे, हर रिलेशनशिप के पैमाने, हर रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव्स वो डिफरेंट हैं, और हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी वो आनी चाहिए। Remember that each person will react uniquely. Your son will react uniquely, your daughter will react uniquely, your spouse would react uniquely, your parents would react uniquely, your boss would react uniquely, your subordinate would react uniquely. तो हर किसी की जो इंडिविजुअल यूनिकनेस है आपने उसको भी चैलेंज नहीं करना है, और हर किसी के जो ख्यालात हैं उनका एहतराम करना है। और आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आप कोई भी चीज इंपोज करने नहीं आए हो, आप डिस्कस करने आए हो फॉर विन विन डेवलपमेंट। तीसरी चीज जो आपको सोचनी है, एंड दैट इज दैट परसेप्चुअल एरर्स एंड बायसेस कैन ऑलवेज टेक प्लेस। इसको हम एक और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ह्यूरिस्टिक्स, जिसको हम कहते हैं जजमेंटल शॉर्टकट्स। ठीक है, हालो इफेक्ट, स्टीरियोटाइप, रिसेंसी एरर, आपका सिवेरिटी एरर, लीनियंसी एरर, इस तरह के बेशुमार एरर्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं, परसेप्चुअल बायसेस हमारे साथ एसोसिएटेड होती हैं। और हम में से कोई भी शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो बायसेस से पाक है। हम सब में कोई ना कोई फेवरेटिज्म वो हर वक्त मौजूद है। हम अपने फेवरेटिज्म को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने फेवरेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी हैव टू वेरी मच कॉन्शियस कि हमारी बायसेस और हमारे परसेप्चुअल एरर्स किस चीज के हवाले से क्या है। क्या आप जुज को देखकर कुल पर फैसला करते हो कि आप कुल को देखकर जुज पर फैसला करते हो? अब ये दोनों चीजें परसेप्चुअल एरर्स कॉज करेंगी, और आपको इस बारे में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको अपने ह्यूरिस्टिक्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। Another thing which you have to remember is confirm the quality and quantity of the expectations. आपको उनको बड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स पर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ताकि आप उसको कंप्रीहेंड भी कर सको और इवेंचुअली इनकॉर्पोरेट भी कर सको। तो जो भी एक्सपेक्टेशंस, जो भी तवक्कुआत आप समझते हो कि आपके स्टेक होल्डर्स की आपके साथ है और आपकी उनके साथ है, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी, इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखना वो हमारे लिए जरूरी है। The next topic which your book is talking about is be whole, act with integrity, working through your fears. और हम सबके साथ, हमने पहले भी अपने टॉपिक्स में डिस्कस किया था कि कोई ना कोई फियर वो अटैच्ड है, और कोई भी हम में से अपने उन इनर फियर्स को जीरो नहीं कर सकता। तो उसका फिर कंट्रोल करने का तरीका ये है कि वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज फियर्स। सो वर्किंग थ्रू योर फियर्स में याद रखें कि यू शुड बी अवेयर अबाउट योर इनर फियर्स एंड एंजाइटीज। बाज औकात हर मामले के अंदर, हर ताल्लुक के अंदर हमें एक डर उसके टूटने का भी होता है, उसके नाराजगी का भी होता है, उसके खफा होने का भी होता है। सो वो डर जरूरी नहीं कि वो डर इज समथिंग like you are afraid from some horrible thing. That डर is sometimes a very sophisticated, very fragile feeling कि जो उस ताल्लुक को, उस मामले को खराब ना करने का डर वो भी आपके पास मौजूद है। So you have to be aware about your inner fears and anxieties. Number 2, be ready to hear the most unwanted. बाज़ औक़ात जब आप कॉन्शियस लेवल के ऊपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के साथ
पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हो, टू नो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अदर पीपल, तो बाज़ औक़ात आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि आप कोई ऐसी बात भी सुन पाओ कि जो शायद आप सुनने के रवादार नहीं हो। ओके, और फिर उस बात को सुनकर एब्जॉर्ब करना और उसको पॉजिटिव सेंस में पिक करना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज वो बन जाएगा। सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर ओन लिमिटेशंस। हम सब में कोई ना कोई कमी और कोताही है, हम में से कोई भी शायद ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो परफेक्ट है अपने हर किस्म के मामला तो ताल्लुकात में। उससे कोई ना कोई ज्यादती, कोई ना कोई मिसहैपनिंग, कोई ना कोई गलती को वो कमिट होती रही होगी या हो रही होगी। तो आपकी अपनी भी लिमिटेशंस हैं, अगर दूसरों की लिमिटेशंस हैं तो आपकी अपनी भी लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस का ख्याल रखना और एहसास रखना वो आपके लिए जरूरी है। बिकॉज अगर आप अपनी लिमिटेशंस को भी नहीं पहचान पाएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप दूसरों के साथ मामलात को कैसे सेटल करेंगे। उस मकसद के लिए आपका ऑथर एडवाइस करता है कि यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर ओन स्वॉट। आपको वक्तन फवक्तन अपना स्वॉट एनालिसिस करते रहना चाहिए। What are your strengths, weaknesses, opportunities and threats? और अगर आप अपनी जात का SWOT एनालिसिस नहीं कर सकते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशंस का या आप किसी और लेवल के ऊपर जाकर किसी का SWOT एनालिसिस वो क्या करोगे? तो you should be able to do your SWOT. You should be able to recognize your limits, recognize your conditions and constraints. इसके बाद कुछ हमारे पास dreaded stakeholders भी होते हैं, the people who dare to do the things. Everyone have at least one or two dreaded stakeholders. और ये dreaded stakeholders का मेन कंसर्न क्या होगा? They may try to prove you wrong. अब वो कम्युनिटी में शख्स हो सकता है, वो कोई प्रोफेशन में शख्स हो सकता है, वो कोई फैमिली एंड रिलेटिव्स में कोई शख्स हो सकता है कि who is always there to prove that you are wrong, who is always to underestimate your capabilities and concerns. So आपको ये भी देखना होगा कि who is that dreaded stakeholder, और फिर उसके साथ टैकल आपने वो कैसे करना है, to whom you are given a kind of power over you. और बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द हमारे ऊपर कोई ना कोई ताकत वो रखते हैं, और वो बात औक़ात हम ताकत का गलत इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं, और उसकी वो ताकत भी एक्चुअली वो इन सम वे और द अदर वो हमने शायद दी होगी। सो समवन यू बिलीव कंट्रोल सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। सो वो तमाम लोग आपको आइडेंटिफाई करने हैं हु आर देयर to tickle you, who are there to change your rationality and change your thought, and who are there to challenge your perspectives. ठीक है, तो उसको आपको समझना है, देखना है, जानना है, और फिर हमें ये सोचना होगा कि उन dreaded stakeholders को टैकल हमने वो कैसे करना है। So after knowing the dreaded stakeholder, it is said in your book that understand stakeholders' perspectives and see new possibilities. अब वो new possibilities के लिए वो कहता है कि some people would be more open and others more close. बाज़ लोग इसे पर्सनैलिटी टाइप्स भी हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं, एक्सट्रोवर्ट्स हैं। बाज़ लोग इजहार कर पाते हैं और बाज़ लोग इजहार नहीं कर पाते हैं। आपके इर्द गिर्द, आपके माहौल में, आपके घर में, आपके प्रोफेशन में, आपकी कम्युनिटी में देयर वुड बी सम मेनी पीपल जो बाज़ अपना आप इजहार कर पाए और बाज़ अपना आप इजहार नहीं कर पाए। सो आपने उनकी उस खामोशी के शोर को सुनना है। आपने ये समझना है कि व्हाट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू कम अप विद। और याद रखिएगा कि खामोश गुफ्तगू को समझना और सुनना is a better thing than just to listen to the spoken words. वो जॉन कीट्स ने इसके ऊपर एक बड़ा मजे का एक्सप्रेशन कोट किया था। उसने कहा था कि unheard melodies are sweeter than heard. Okay? तो remember कि some people would be more open and some are more close. तो आपको दोनों perspectives में टैकल करना वो आना चाहिए। Everyone